जयपुर के निजी होटल राजपूताना में इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। होटल राजपूताना से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का साफा बांधकर स्वागत किया गया। चीफ मिनिस्टर साहब श्री भजन लाल शर्मा जी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए यहाँ निकाला, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। सम्मान की इस श्रृंखला में मैं सुदीप जी से निवेदन करूंगी कि अगला सम्मान श्री श्रीपद यशो नायक जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का साफा पहनाकर शॉल उड़ाकर सम्मान सत्कार करें। सम्मान की इस कड़ी में अगला सम्मान सत्कार श्री हीरालाल नागर जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का साफा पहनाकर शॉल उड़ाकर सम्मान सत्कार श्री सुदीप जी करेंगे। सम्मान की इस श्रृंखला में अगला सम्मान सत्कार श्री राजेश धर्मानी जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, हाउसिंग, टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, साफा पहनाकर शॉल उड़ाकर सम्मान सत्कार। थैंक यू सो मच। अगला सम्मान श्री सतीश शर्मा जी, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, साफा पहनाकर शॉल उड़ाकर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और सम्मान की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए महिला शक्ति को मैं यहाँ सम्मान सत्कार करने के लिए रिक्वेस्ट करूंगी सर से। मैम निधि खेरे जी, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी। ऑलराइट, अगली सम्मान सत्कार की श्रेणी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्रीमती मंजू शर्मा जी का हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन। बहुत बहुत अभिनंदन मैम। नाउ निधि खेरे मैम, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी। आप सभी लोग यदि तालियां बजाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ये सभी गणमान्य लोग अपना अमूल्य समय निकाल कर हमारे बीच में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। सबसे पहले यहाँ पे मैं एड्रेस करने के लिए श्री सुदीप जैन जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ, एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। Honorable Union Minister for Food, Public Distribution, Consumer Affairs and New and Renewable Energy, Shri Prahlad Joshi ji, Honorable Chief Minister of Rajasthan, Shri Bhajan Lal ji, Honorable Minister of State for Power and New and Renewable Energy, Government of India, Shri Shripad Yasho Nayak ji, Honorable Minister of Energy, Rajasthan, Shri Hiralal Nagar ji, Honorable Minister of Energy, Haryana, Shri Anil Vij ji,
Honorable Minister of Town and Country Planning, Housing and Technical Education, Himachal Pradesh, Shri Rajesh Dharmanji, Honorable Minister for Science and Technology, Jammu and Kashmir, Shri Satish Mishra ji, respected Secretary MNRE, Nidhi Khare ma'am, colleagues from participating states and UTs of Rajasthan, UP, Uttarakhand, Haryana, Punjab, Himachal Pradesh, J&K, Ladakh, Chandigarh and Delhi. Special invitee Shri Manu Srivastav, ACS Energy Madhya Pradesh, and ACS Energy from Maharashtra, Ms. Abha Shukla and Mr. Lokesh. Secretary MNRE, Nidhi Khare ma'am, colleagues from participating states and UTs of Rajasthan, UP, Uttarakhand, Haryana, Punjab, Himachal Pradesh, J&K, Ladakh, Chandigarh and Delhi. Special invitee Shri Manu Srivastav, ACS Energy Madhya Pradesh, and ACS Energy from Maharashtra, Ms. Abha Shukla and Mr. Lokesh ji. All the colleagues from MNRE, REC and all the participating colleagues from the states, a very good morning to all of you. Renewable energy is amongst the fastest growing sectors in the country today. But to achieve Honorable Prime Minister's Panchamrit goal of 500 gigawatt by 2030 and then to reach the required 1800 gigawatt by 2047, we'll have to together brainstorm and think differently. Many states and UTs have already taken the lead with several innovative projects, while some are yet to prioritize renewable energy. Honorable Union Minister actually expressed his desire to go and meet each of you in your respective states. So the series of regional workshops now that we have started is a step in that direction, whereby your specific issues can be discussed, the innovations that you are doing can be an eye-opener to the other colleagues, and we can learn from each other and their each of us would go with at least a few insightful takeaways. Thank you very much. Thank you so much, sir. Now for context setting, मैं यहाँ पे आमंत्रित करना चाहती हूँ श्रीमती निधि खेरे, मैम, सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। एक बार जोरदार तालियां बजाकर मैम का स्वागत करेंगे। Over to you, ma'am. Honorable Union Minister for Consumer Affairs, Food and Public Distribution, New and Renewable Energy, Shri Prahlad Joshi ji, Honorable Chief Minister, Government of Rajasthan, Shri Bhajanlal Sharma ji, Minister of State for Renewable, New and Renewable Energy, Shri Shripad Yeso Nayak ji, Shri Hiralal Nagar ji, Honorable Minister of Energy, Government of Rajasthan, Shri Rajesh Dharmani ji, Minister of Town and Country Planning, Housing, Technical Education, Vocational and Industrial Training, Government of Himachal Pradesh, Honorable Minister for Science and Technology Department, Government of J&K, Shri Satish Mishra ji, Madam Manju Sharma ji, senior officers from the department, senior officers from northern and northwestern states, colleagues, esteemed guests, and my friends. It is indeed an honor
to address this August gathering on India's remarkable progress in renewable energy. Our installed renewable energy capacity has crossed 460 gigawatt, with 45.5% of our total capacity coming from renewable sources. Solar power leads the way at about 97 gigawatt, followed by wind power at about 48 gigawatt, hydroelectric power at 52 gigawatt, and bioenergy at 11 gigawatt. As we move forward, we are committed to achieving India's ambitious targets, including 500 gigawatt of non-fossil fuel capacity by 2030. Today, we, the states of Rajasthan, Maharashtra, Madhya Pradesh, Delhi, Haryana, Punjab, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Jammu and Kashmir, Chhattisgarh and Ladakh hold immense potential for the entire renewable energy uptake, including solar, wind, hydro and bioenergy. These regions offer favorable geography, climate and infrastructure, making them ideal for large-scale renewable energy projects. To tap into this potential, the Ministry of New and Renewable Energy has launched several initiatives like the National Wind Solar Hybrid Policy, Green Energy Corridor, PM Kusum Scheme, PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana, National Green Hydrogen Mission. These initiatives demonstrate our collective commitment to a sustainable energy future and our efforts to reduce reliance on fossil fuels. With policy incentives, investment promotion schemes, and collaborative efforts, we can certainly overcome challenges and create a greener future for India. Over the next few years, we will be engaging in fruitful discussions, especially how to meet RPO targets, how to understand and collect the good practices which are coming up from the field, especially in the areas of PM Kusum. There will be discussion on PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana, the most ambitious part. There will be presentation on the state RE job portal, discussion on repowering of old wind parks, and so on. I expect, and our intention is very clear, to ensure that each one of our colleagues at the state will take away valuable insights, new ideas, and a renewed sense of purpose to drive India's renewable energy journey forward. Once again, I extend a very warm welcome to each and every one of you to this regional review meet of the renewable energy. Thank you so much. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। अब इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पे हमारे माननीय मंत्री महोदय श्री सतीश शर्मा जी, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, को आमंत्रित करना चाहती हूँ एक बार जोरदार गड़गड़ाहट भरी तालियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू सर। नमस्कार, जय माता दी, खमा घणी, प्रणाम, सत श्री अकाल सर। यहाँ पर हमारे ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी श्री प्रहलाद जोशी जी, ऑनरेबल सीएम गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान श्री भजन लाल शर्मा जी, ऑनरेबल MNRE MOS श्री श्रीपद यशु नायक जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान हीरा लाल नागर जी, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर एनर्जी and media persons. I feel highly grateful for being invited by Honorable Union Minister of New and Renewable Energy for this one-day regional workshop on renewable energy. मैं सर जम्मू कश्मीर की बात करूंगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बहुत ही आशीर्वाद रखे हुए हैं हमारी स्टेट पर, और पिछले कुछ सालों से
मैं कहूँगा कि हर चीज़ जो है इट इज़ इन कंट्रोल, अंडर कंट्रोल। चाहे वो दहशतगर्दी की वारदातें थी, लोगों का विश्वास बढ़ा है, और इस बात में मैं हेजिटेट नहीं करूँगा कि कुछ कमियां थी वक्त वक्त की सरकारों पे, लेकिन आज हमें महसूस हो रहा है वी आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कंट्री, जो हम हमेशा से थे, हमेशा रहेंगे। और वो जो देश विरोधी ताकतें हैं उनकी कमर भी टूटी है, और मुझे लगता है आने वाले वक्त में हिम्मत भी नहीं करेंगे हमारे वहाँ के आवाम को तंग करने के लिए, हमारे देश को गुमराह करने के लिए, और इंटरनेशनल फोरम पे जो हमारी छवि बिगाड़ी जाती है। तो आपके डिपार्टमेंट के हवाले से सर मैं चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस डिपार्टमेंट की। हम चाहते हैं हमारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जो हैं सोलराइज होने से 2025 तक अभी लेकिन 40 मेगावाट का रूफटॉप सोलर इंस्टॉल किया जा चुका है, क्योंकि वहाँ कुछ परेशानियाँ रही हैं साहब। इलेक्शंस 2-3 हमारी हुई हैं, कोड ऑफ कंडक्ट भी रहा है, मौसम भी साजगार नहीं रहता, लेकिन हमें थोड़ा सा आशीर्वाद आपका ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान का जो ताज है उसका खास ख्याल रखना है, तो कहीं हमें आपको रियायत देनी पड़ेगी। तो मैं चाहूँगा माननीय मंत्री साहब आपको थोड़ा आशीर्वाद रखना है। डोमेस्टिक सेक्टर में हमने 35 मेगावाट का इंस्टॉलेशन कर चुके हैं, और पीएम कुसुम स्कीम जो है हमारा टारगेट 5000 सोलर पंप्स का था अंडर कंपोनेंट बी सर, और सो फार वी हैव इंस्टॉल्ड 3000 सोलर पंप्स। क्योंकि मुझे अभी नौकरी लगे सर आज 95 दिन हुए हैं, 1825 दिन की सर मेरा मैंडेट है, तो मैंने उल्टा कैलेंडर रखा हुआ कि वी आर टेम्पररी। तो मैं यही कहूँगा कि जेएंडके का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, सोलर और स्मॉल हाइड्रो पावर और विंड एनर्जी का भी। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हमारे हैं जो बिल्कुल बॉर्डर के साथ लगते हैं, वहाँ पर इसका काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। तो कोई हमें स्पेशल असिस्टेंस और फाइनेंशियल सपोर्ट अगर MNRE की तरफ से मिल जाए ताकि हम इसे प्रमोट कर सके, क्योंकि जम्मू कश्मीर में सर आप कुछ भी करोगे सबसे पहले आपके पड़ोसी मुल्क जो है पाकिस्तान और चाइना, आप उनके टारगेट पे रहोगे तो हमें फ्री TRP भी मिलेगी और पूरी दुनिया आपको देखेगी भी। तो मैं चाहता हूँ कि अच्छी सपोर्ट आपकी तरफ से हमें मिल जाए, जैसे सोलर स्ट्रीट लाइट्स। मैं आपको सर टॉपिक से हटकर बताऊंगा, जहां मैं जिसे छम कहते हैं सर, उसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ये है कि 335 ईसा पूर्व 325 BC में जब सिकंदर आए थे तो मेरे गांव में जहां मैं आज हूँ विश्राम किया था। फिर 1947 में जब हमारी जंगें हुई तो हमारा बहुत सारा एरिया जो इन्वॉल्व हुआ। फिर 65 की लड़ाई हुई, बहुत सारा एरिया हमारे छम का चला गया, कोई 40 किलोमीटर के करीब। 71 में भी सर ऐसा हुआ। तो मैं चाहता हूं कि हम लोग सफरर्स हैं, और पहले क्या होता था सर, मैंने असम में सोनवाल साहब को बोला कि आज तो आपने मैच बंद करा दिए क्रिकेट के, लेकिन पहले जब भी वो मैच जीत जाते थे तो वो लाइटें ऑन ऑफ करके सर हमें चिढ़ाते थे। तो हमारी बिजली बनती है लेकिन हमारे पास कम है, तो यहाँ ईगो की बात है, सेल्फ रिस्पेक्ट की भी बात है, तो हमें भी कुछ मिलना चाहिए। खासकर सोलर है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है जहां पर दूसरी बिजली अभी तक नहीं पहुंच पाई है, तो आई थिंक वहाँ सोलर बहुत अच्छा काम कर सकता है ये, और वो देश हित में और बॉर्डर एरिया के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट होगा सर। तो मैं यही कहूँगा कि इसको कवर करने के लिए डिपार्टमेंट जो परेशानी, विंटर्स में हमें बड़ी परेशानी है सर, जैसे आज भी वहाँ पर बर्फबारी हो रही है, तो मुझे यहाँ से वहीं जाना है। मैं तैयारी उस हिसाब से करके आया हूँ, लेकिन आई एम फीलिंग बेट अनकंफर्टेबल। तो मैं चाहूँगा कि सर जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उस पर बहुत बड़ी लगाम लग सकती है। हमारा जो एरिया अगर कवर हो जाए, देयर इज इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी है सर, क्योंकि वहाँ अगर 50-50 मीटर पर भी आजकल जो टेक्नोलॉजी आई है, तो हमें देश हित में, राष्ट्र हित में इससे बड़ा योगदान कुछ नहीं होगा जो हमारी ये मिनिस्ट्री कर सकती है। क्योंकि अगर यही सोलर, दूसरा तो इम्पॉसिबल है, स्नो में कवर होगा तो बारिश आ जाएगी या कुछ ऐसी गतिविधियां होती हैं कि वो डैमेज कर देते हैं, बट दिस कैन हेल्प अस अ लॉट। तो मैं आपको इनवाइट करता हूं कि ऐसा एक वर्कशॉप आप जम्मू कश्मीर में लगाएं। अगर स्नो के मौसम में लगाना चाहते हैं मैं तैयारी सर कर दूंगा, अगर आप जून जुलाई में लगाना चाहते हैं वो भी बेहतर होगा, दोनों बातें हो जाएंगी, समझ भी लेंगे, तो माता रानी के दर्शन भी हम करेंगे। और ऐसी आने वाले दिनों में मैं चाहूँगा एक वर्कशॉप, सारे यहाँ पर हमारे ऑफिसर्स बैठे हैं, अगर वो हो जाए तो आई एम वेरी ग्रेशियस होस्ट सर,
तो मदद करेंगे हम जितनी हो सकेगी, हमारा अपना उसमें स्वार्थ भी है। तो इसके साथ ही मैं आप सबका एक बार फिर धन्यवाद करूंगा। एक जाते जाते सर, जैसे पीएम सूर्य घर रूफटॉप सोलर है, 1000 इंस्टॉलेशंस जो हमारी सर डोमेस्टिक में हो गई हैं 3 मेगावाट की सर, वो हमने अचीव की हैं। और हम चाहते हैं हाईली सब्सिडाइज टैरिफ जो है वो हमारे कंज्यूमर्स को एनकरेज करेगा और उसमें हम कोशिश करेंगे। रेस्को मॉडल जो है वो ऐड हो जाए अगर JNK में, दैट इज 100% फेयर वाला, तो उसमें भी सर इन्वेस्टमेंट हो जाए तो हमें अच्छा लगेगा। मैंने कोई किसी किसान के खिलाफ कुछ बोला हो और उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और आप सबका एक बार तहे दिल से आभारी हूँ। और मंत्री साहब ने जो हमें यहाँ बुलाया, तो उनके इनविटेशन पे मेरे चीफ मिनिस्टर साहब भी आना चाहते थे, बट वी हैड कैबिनेट यस्टरडे, मैं छोड़ के आया। और एक बार फिर मुख्यमंत्री साहब और आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।